Hello friends, today we are going to begin a new topic in Maths 2. Chapter number first, Commission, Brokerage and Discount. Students, this is commercial arithmetic, that is you may say commercial mathematics, where problems are related to some commercial concepts, and being a commerce students, you're supposed to know all these concepts, and related to that we have to solve questions. Now in this topic there are total 3 parts. So broadly, if I give you overview about this chapter, they have covered 3 things. First part A, which is based on commission and brokerage, the questions based on commission and brokerage. Second B part is the questions based on the topic discount, and both these concepts they have covered, questions covered in exercise 1.1. You will get to see questions based on commission and brokerage as well as discount. And the third part, part C, there is topic called bills of exchange. This particular concept and the bill of exchange, which is very much used in commercial transactions, and based on that we have to solve questions in exercise 1.2. So altogether this is what your chapter is broadly classified, but for any part, any type of question, if you want to solve, the concept we need to first understand. जो भी उसका थियरी है, बेसिक है, उसको हमें समझना है. उसके कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं तो वो भी हमें ध्यान में लेने हैं. बट आप कंसेप्ट शांति से समझेंगे ना तो फॉर्मूला अपने आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं. सो फॉर्मूला इज नॉट अ बिग डील. अंडरस्टैंडिंग एंड द कंसेप्ट क्लियरेंस is important thing for students. फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे जो आपने कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझा है. So these 3 parts you have to study, and based on this you have to solve questions in these 2 particular exercise. Now let me start with the first part A, that is commission and brokerage. स्टूडेंट ये टर्म्स आपके लिए नए नहीं है, कहाँ ना कहाँ आपने इसको सुने भी हैं. कमर्शियल टर्म है, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब वर्डिंग्स ऑलरेडी यू हैव कम अक्रॉस, बट नाउ वी विल सी इट्स मीनिंग and related terms which we call terminology. So important points first you need to understand so that you can properly study the concept, क्योंकि concept के लिए जो भी हमें related terms की understanding होनी जरूरी है, that is required. So first term is principal. आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपके जो कॉलेज वगैरह हैं उसके प्रिंसिपल, दिस इज अ टर्म प्रिंसिपल. द सेम स्पेलिंग वी हैव. इट्स अ ओनर, और यू हैव टू कंसिडर इट इन कॉमन वर्ड एज अ हेड. जैसे हमने बोला ना, कोई इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल होते हैं जो हेड है, ही यूज्ड टू हैंडल होल कॉलेज एकेडमिकली. आपके कॉलेज वगैरह के भी प्रिंसिपल जो है वो आपके कॉलेज को चलाने के लिए एकेडमिकली, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक उनका पर्टिकुलर रोल होता है.
So here in commercial term, this principal word we have to consider like a kind of owner who runs his business, जो अपना बिजनेस चलाता है और उसमें क्या करता है, वो उसका बिजनेस चलने के लिए उसको गुड्स और सर्विसेज को सेल करना पड़ता है. He used to sell, तो ही उसका वो बिजनेस चला सकता है. So he is a owner, he is a head, and he is running his business by selling goods and services, and therefore he is one of the parties in the transaction. When he is selling the goods, definitely जो भी ट्रांजैक्शन होगा, एज यू कैन अंडरस्टैंड, आप तो अकाउंट पढ़ते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन है सेल करेगा वो आदमी, तो वो आदमी उस ट्रांजैक्शन का एक पार्टी या एक हिस्सा बन जाता है. He is one of the parties in the transaction. When he is selling the goods, at that time he becomes a party in that particular transaction. So he is a principal, he is going to sell his goods. Next term is an agent. Agent दूसरा शब्द है middleman. Middleman जो बीच में रहकर दूसरे का काम करवाता है. In simple wordings we can explain like that. So he does the work on behalf of his principal. Agent क्या करेगा, वो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल जो बोलेगा उस हिसाब से वो काम करेगा, मतलब प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगा. खास करके ये प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट इसलिए करता है कि एजेंट उस प्रिंसिपल का गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह सेल करवा के दे सके. मतलब एजेंट क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा उसके गुड्स को बेचने के लिए. तो प्रिंसिपल विल अपॉइंट दैट पर्टिकुलर एजेंट कि भाई हमारे को वो गुड्स बेच के देगा और हम उसको कमीशन देंगे. तो क्या लिखा है देखो, he does the work on behalf of his principal. प्रिंसिपल जो भी बोलेगा उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसका काम करेगा वो एजेंट, फॉर सम कंसिडरेशन. अब जब एजेंट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रहा है तो एजेंट को कुछ रेम्यूनरेशन, कंसिडरेशन मतलब कि उसके अगेंस्ट कुछ मिलना, कंसिडरेशन, तो उसको रेम्यूनरेशन हम बोलते हैं. उसको हम बोलते हैं कि भाई जो उसका कमीशन है, दैट पार्ट, दैट कंसिडरेशन, क्योंकि वो ऐसे ही तो काम नहीं करेगा. सो एजेंट विल वर्क on behalf of his principal for some consideration on the basis of pre-decided terms and conditions. पहले से नक्की कर लेंगे सब कि भाई आप मुझे इतने हिसाब से इतने का कमीशन दोगे, ये रेट रहेगा 10%, 20%, 12%, 15%, जो डिसाइड करना है, जो टर्म्स कंडीशन उनको डिसाइड करनी है उसके हिसाब से दे डू देयर कॉन्ट्रैक्ट के एजेंट मैं आपका काम करने के लिए रेडी हूं, ये सब टर्म्स कंडीशन रहेगी, आप मुझे इतना कमीशन इतने रेट के हिसाब से कमीशन दोगे, आई विल वर्क दिस मच ड्यूरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी टर्म्स कंडीशन है. एंड ये एजेंट प्रिंसिपल का उस तरह से नक्की किया है उसके हिसाब से काम करके देगा. इससे क्या होता है, प्रिंसिपल को माल बेचने का जो है, गुड्स सेल करना है ना, उसमें थोड़ा हेल्प हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल अकेला कितने को बेचेगा, कितना बेच पाएगा, कितने जगह पे बेचने के लिए खुद जाएगा. नॉट पॉसिबल फॉर दैट सिंगल प्रिंसिपल अलोन कि अकेले आदमी से कितना काम हो. सो ही विल अपॉइंट डिफरेंट एजेंट, सो दैट एजेंट विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. एंड देयर आर various types of agents which we are going to study further. तीसरा टर्म है, देख लीजिए, कमीशन. अब जो मैंने वर्ड ऐसे तो आगे बोल ही दिया है, चैप्टर के नाम में भी है कमीशन वर्ड, बट इसको एक अपन मीनिंगफुली एक्सप्लेन कर लेते हैं. जैसे कि द कंसिडरेशन पेड बाय प्रिंसिपल फॉर सर्विस गिवन बाय एन एजेंट, दैट इज कॉल्ड अ कमीशन. तो कि भाई जो पगार, जो सैलरी, जो 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 जैसा भी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से, खास तौर पे परसेंटेज नक्की करते हैं. कभी कभी क्या होता है, एजेंट को
हम लोग फिक्स थोड़ा सैलरी भी देने के लिए नक्की कर देते कि भाई तू इतना काम तो पक्का करने वाला है मेरे लिए, तो उतना तेरे को पगार श्योरली मैं दूंगा। लेकिन उसके अलावा वो अपने लिए माल बेच के देता है ना, माल जितना बेचेगा, जितना वो बेच पाएगा, जितना वो ज्यादा प्रयत्न करेगा बेचने के लिए, वो उसको उसके ऊपर हम कमीशन देंगे कि भाई 50,000 का माल बेचा तो तुमको 50,000 के ऊपर कमीशन मिलेगा। दैट रेट ऑफ कमीशन इज बीन डिसाइडेड इन एडवांस कि भाई आपको 15%, 12%, 10%, 8%, जो भी नक्की करने का है, दैट विल बी प्री डिसाइडेड एंड दैट विल बी म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ। कि भाई जो प्रिंसिपल है जो नक्की कर रहा है एजेंट के साथ, एजेंट को भी वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मतलब एजेंट को वो टर्म्स कंडीशन एग्री है और प्रिंसिपल भी एग्री है, तो दोनों के बीच में उस प्रकार से बात बढ़ेगी कि भाई हम आपके बिहाफ काम करेंगे और हम उसके लिए आपके पास से इतने का कमीशन लेंगे, इतना रेट का कमीशन आपसे लेंगे। तो रेट ऑफ कमीशन होता है परसेंटेज में, वो दिया जाता है एजेंट को और उसको बोलते हैं कमीशन, विच इज अ कंसिडरेशन पेड बाय प्रिंसिपल फॉर द सर्विस गिवन बाय एन एजेंट, दैट इज रेम्यूनरेशन paid to the agent. So this is what the three important terms which gives you broad idea about the principal and agent relationship and the role of principal and agent. तो ये टर्म्स से हम जब हम बातें जब बोलते हैं तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि नहीं इसको ये बोलते हैं, क्योंकि पहले से उसका हमको डेफिनेशन या मीनिंग मालूम रहता है। कोई टर्म मालूम ही नहीं है और बोल देंगे और किसी को पता ही नहीं उसका मीनिंग, तो नहीं समझ पाएगा। तो पहले हमें उसके बारे में थोड़ा टर्म्स कंडीशन के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। नाउ एज अर्ली इन एजेंट पार्ट आई हैव written here that there are various types of agents. So let me explain about the types of agents. Types of agent के बारे में हम देखेंगे, कुछ टाइप्स मेंशन किए हुए हैं। देखो, फर्स्ट इज कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट एक सिंपल कि भाई माल बेचेगा प्रिंसिपल के बिहाफ और उसके ऊपर उसको कमीशन मिल जाएगा। सो हु बाइज और सेल। अभी ये इसमें ऐसा भी होता है कि कमीशन उसको माल खरीदने के लिए उसके प्रिंसिपल उसको भेजते हैं कि भाई जाओ जाके हमारे को इतना जो है अपने को जरूरत है माल खरीद के आओ। तो परचेज करने का भी काम एजेंट का हो सकता है, माल को बेचने का भी काम एजेंट का हो सकता है। एजेंट को जो काम देंगे प्रिंसिपल उसको करना है, एजेंट विल डू दैट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। तो एक जनरल बात हो जाती है कि कमीशन एजेंट किसको बोलेंगे कि जो प्रिंसिपल के बिहाफ एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ जो माल को बेचता है या माल को सेल करता है और उसके लिए एजेंट को कमीशन मिलता है, सिंपल that particular type of agent is called commission agent. Now second is the word is called auctioneer. जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन सेल आपने शायद सुना होगा। आईपीएल का तो सब लोग मैच देखते ही होंगे। इन आईपीएल क्रिकेट लीग ये टीम जब बनती है तो टीम के जो अंदर प्लेयर्स का जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें उन लोगों की प्लेयर की सेलिंग होती है ना। प्लेयर की सेलिंग इन द सेंस दे सिट टुगेदर, उसकी बिडिंग होती है, बोली लगती है और एक एक प्लेयर की जो बोली लगती है उसमें जो भी उसको खरीदना चाहता है वो हायर अपर साइड का बोली मतलब कि बिड उसका प्राइस बोलते जाता है कि किसने बोला कि 5 करोड़, तो किसने बोला कि भाई 5.5 करोड़, फिर किसने बोला 6 करोड़, किसने बोला 6.25 करोड़। मतलब ये एक के बाद एक ऊपर की बोली लोग बोलते रहते हैं। बोली मतलब बिडिंग, जो बिडिंग शब्द है बिड करना, मतलब you have to quote the price in comparison of the earlier bidder little bit more, कि मैं उसके लिए 6 करोड़ का प्राइस देने के लिए रेडी हूं, but if somebody wants that player he will say no, I am going to give 6.5 crores,
he is going to bid 6.5 crore. So then the next bidding जो आई 6.5 crore latest, that will be considered. अब समझो 6.5 के आगे किसी ने नहीं बोला, तो वो बिडिंग फाइनल और अल्टीमेट मानी जाएगी, और उसके लिए हम लोग फिर इस तरह से बोलते हैं, जो बिडिंग लास्ट होता है 6.5 करोड़ वन टाइम, 6.5 करोड़ टू टाइम, 6.5 करोड़ थ्री टाइम, ऐसे करके 3 बार ऐसा बोल के उन लोग उस बिडिंग को क्लोज कर देते हैं. मतलब दैट विल बी द फाइनल प्राइस in which that player is going to be sold out to that particular person जिसने की हाईएस्ट बिडिंग की है. तो यहाँ पे क्लियर लिखा है who sells by auction, ऑक्शन जिसको हम बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग, जिसको मैंने बोला ना प्राइस का कोट करने का, जो हाईएस्ट प्राइस कोट करता है, ये जो कोट करने की जो प्रोसेस है उसको बिडिंग बोलते हैं. द हाईएस्ट बिडर विल गेट द गुड्स. और पर्टिकुलरली मैंने आईपीएल का उदाहरण लिया, उसमें प्लेयर्स के लिए बिडिंग होती है. जैसे आईपीएल है, ऐसे अलग अलग इन लोगों ने फुटबॉल की लीग्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स वगैरह रहते हैं, इसमें इन लोगों ने इस तरह के प्लेयर के लिए बिडिंग के जरिए उन्होंने प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, उनको सेल आउट कितने में करना, दैट वे दे यूज्ड टू हैव दैट पर्टिकुलर ऑक्शन सेल. So that is particularly that agent who is conducting that is called as auctioneer. ऐसे गुड्स का होता है. मैं आपको बता दूं कि काफी सारे जो जुने पुराने पेंटिंग्स होते हैं, फॉरेन में ज्यादा होता है कि वो पेंटिंग है या कोई ऐसे आर्टिस्ट ने कुछ ऐसे अपने अलग से जिसको हम बोलते हैं ना कि वो एंटिक पीस बनाए हुए हैं, है ना, मूर्ति होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कुछ पेंटिंग्स खास करके होती हैं जिसमें पेंटिंग का उन लोगों ने उस तरह से म्यूजियम में रखा रहता है, मतलब हॉल में रखा रहता है, और उसके हॉल में उसमें अपना ये ऑक्शन सेल कंडक्ट करते हैं कि जो पेंटिंग बड़े बड़े आर्टिस्टों ने बनाई हुई है ना, कोई जुने पुराने ऐसे आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, उसका आज बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उसका जो पेंटिंग सेल होगा, इस तरह से हम लोग बिडिंग करते हैं, एंड देन दे यूज टू सेल इट इन दैट वे. और कभी कभी तो इन लोग कोई सोशल कॉज में भी वो पैसा वापर लेते हैं, फाइन, वो कुछ दूसरी बात हो गई कि भाई उन लोग ऑक्शन इसलिए करते हैं कि वो हिसाब से उन लोग उस पैसे को कहाँ कोई सोशल कॉज के लिए यूज कर सके. सो दैट पर्टिकुलर ऑक्शनर इज अ काइंड ऑफ एजेंट. सो नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रोकर. ब्रोकर का आपने शब्द सुना होगा, जैसे स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जैसे कि भाई ये जो फ्लैट वगैरह हम लोग खरीदते हैं, या कोई रियल एस्टेट जिसको मतलब दुकान मकान खरीदने के लिए कोई ब्रोकर को हम अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे इधर इस जगह पे दुकान चाहिए, कुछ उनको ढूंढ के दीजिए. तो ब्रोकर क्या करता है, जिनको वो दुकान बेचनी रहती है उनका रेफरेंस जिनको खरीदनी है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं. मतलब ब्रोकर क्या करता है, बायर और सेलर को एक साथ कनेक्ट करता है, जिससे क्या हो जाता है, बायर को अपने हिसाब से जो चाहिए वो चीज खरीदने मिलती है, और सेलर को जो अपने चीज को बेचनी है उसके लिए उसको बायर मिल जाता है. सो दोनों को वो एक साथ लेके आता है. अब ब्रोकर क्या बोलेगा बायर को कि भाई मैंने तुमको जो चीज चाहिए थी वो लाके उसका रेफरेंस दिया है, तुमने खरीदी भी है, तो मैं तुम्हारे से उसको उसके ऊपर कमीशन लूंगा. अच्छा, ब्रोकर सेलर को क्या बोलता है कि सेलर तेरे को ये चीज बेचनी थी, मैंने बायर को अप्रोच कर लिया है, बायर तेरे सामने है, अब तुमको बेचना है, ही इज रेडी टू परचेज, यू कैन सेल नाउ, तो तुम मुझे उसके ऊपर कमीशन दोगे. मतलब ब्रोकर क्या कर रहा है, दोनों पार्टी से क्या करेगा, कमीशन लेगा, एंड देयरफॉर उसको ब्रोकर भी बोला जाता है. कि जब कमीशन बायर और सेलर दोनों के पास से लिया जाता है, कभी क्योंकि जब भी उन लोग दोनों को साथ में लेके आने की बात हो, क्योंकि तभी ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा. बायर अपने जगह पे है, सेलर अपने जगह पे है, दोनों को अपना हिसाब ट्रांजैक्शन करने का है, लेकिन दोनों के कांटेक्ट में कोई नहीं है तो एक दूसरे में, तो ब्रोकर क्या करेगा, दोनों को कांटेक्ट में लाएगा, और जो दोनों को एग्री होता है तो दोनों एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं. तो ब्रोकर के थ्रू हुआ ये ट्रांजैक्शन, इसके लिए ब्रोकर को कमीशन दोनों पे करेंगे.
तो ब्रोकर को तो दोनों तरफ से लड्डू खाने मिले ना, तो who charges commission from both the parties, that is buyer and seller, by bringing both together for transaction. दोनों को साथ में लाने का काम किया किसने? ब्रोकर ने। इसलिए इसके लिए शब्द ये जो यूज किया ना ब्रोकर, ये एक तरीके का एजेंट ही है, बट वर्ड क्या यूज करने का? ब्रोकर। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रोकर जो कमीशन चार्ज करता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। जैसे नॉर्मली एजेंट के लिए हम कमीशन वर्ड यूज कर रहे हैं, सो दैट नॉर्मल एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी वर्ड यूज दिस वर्ड एज अ कमीशन, बट द ब्रोकर एक ऐसा आदमी है जिसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज फ्रॉम बायर, ब्रोकरेज फ्रॉम सेलर। चलिए नेक्स्ट इज द फैक्टर। Factor is a kind of agent who takes possession of goods in bulk from his principal to make deals, or you may say contract for sale in his or her name. Factor को क्या कर देगा? प्रिंसिपल है ना, एक बड़े क्वांटिटी में उसको गुड्स दे देगा कि भाई ले ले भाई, ये गुड्स लेके जाओ, तुम्हारे पोजेशन में रखो और तुम तुम्हारे लेवल पे तुम्हारे नाम पे बेचो और फिर मुझे हिसाब दो, हम हमारे टर्म्स कंडीशन के हिसाब से तुमको कमीशन देंगे। तो यहाँ इस तरह से उसको एक बल्क क्वांटिटी का पोजीशन गुड्स का मिल जाएगा और वो डील करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लेवल पे, कमीशन उसका खुद के लेवल पे, उसके नाम पे, और उस तरह से ये फैक्टर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डेल क्रेडर एजेंट। डेल creditor agent. Del creditor agent who gives guarantee of payment to his principal after selling goods on credit on his risk on behalf of his principal. Principal के भी आप गुड्स बेचना ये एक जनरली एजेंट का काम है, लेकिन अब फिलहाल इस टाइप के एजेंट का क्या एक स्पेशल काम है, क्योंकि मार्केट में लोग जो गुड्स खरीदने आते हैं बड़ी क्वांटिटी में, जब भी कोई खरीदने आता है तो वो जनरली क्रेडिट मांगता है। क्रेडिट मांगना मतलब क्या? उधार पे खरीदना। आपने अकाउंट्स वगैरह पे पढ़ा ही होगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब क्या है? वो ऑन द स्पॉट रेडी कैश पेमेंट नहीं कर रहा है, वो आपको बोल के जाएगा कि मैं आपको 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा, और इसको हम बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब एजेंट का काम है गुड्स बेचना, सीधी सी बात है, और एजेंट वो कस्टमर से कैश के बेसिस पे ही सेल करेगा, तो हो सकता है कभी वो कस्टमर उसके पास ना आए, क्योंकि वो सोचेगा कि भाई इसको तो रेडीली कैश चाहिए, उतना पैसा कभी किसी कस्टमर के पास नहीं होगा, और उधार मांगने के लिए खड़ा रहेगा तो वो तो उधार पे बेच नहीं रहा है, तो वो तो दूसरे के पास चला जाएगा। तो एजेंट क्या करेगा कि उधार पे बेचने के लिए कुछ सिस्टम उस तरह से शुरू करेगा, ताकि क्या वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। कस्टमर देखेगा बनी है यहाँ पे उधारी चलती है, यहाँ पे क्रेडिट पे सेल होता है, तो हम वहां जाएंगे लेने को, और अच्छी बात है, उससे क्या होता है उनका सेल भी बढ़ता है ना। तो एजेंट क्या करेगा? प्रिंसिपल को बोलेगा कि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जो माल उधार पे बेचूंगा ना, क्रेडिट पे बेचूंगा, उसका पैसा तुमको मैं रिकवर करके दूंगा। मतलब मैं जो कस्टमर को बेचूंगा वो कस्टमर जो भी क्रेडिट पीरियड के बाद पेमेंट करने वाला है वो डेफिनेटली करेगा, ये मेरा गारंटी है, मेरे रिस्क पे मैं बेचता हूं। ये गारंटी देता है कौन? एजेंट। किसको? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल मना नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल को तो चाहिए ना क्रेडिट देने से कि उसका सेल होता है ज्यादा, तो प्रिंसिपल उसको बोलेगा हाँ कर, लेकिन प्रिंसिपल बोलेगा भाई तू तेरे रिस्क पे करेगा, हाँ लेकिन मैं उसके लिए तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। मतलब डेल क्रेडिटर एजेंट अपने आप ही बोलता है कि नहीं मैं ये एक्स्ट्रा काम करने का एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। सो एडिशनल कमीशन इज प्रोवाइडेड टू एन एजेंट, इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। एडिशनल क्यों? पहला वाला कमीशन कौन था? क्योंकि गुड्स बेचने का काम जो है ना, सेलिंग द गुड्स,
ये बेचने का काम कर रहा है एजेंट, उसके ऊपर एक कमीशन बनता है उसको, और उसके बाद जब उसने क्रेडिट पे बेचा है और उसके क्रेडिट पे बेचने पे वो पैसा उसका रिकवर करने का काम, वो काम का एडिशनल कमीशन वो प्रिंसिपल से मांगेगा। So additional commission is provided to an agent is called dull creditor commission. अब समझो क्या होगा, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है बता रहा हूं कि कस्टमर फेल्स टू पे हिज ड्यूज। समझो कि भाई वो 15 दिन के बाद बोला था पैसा पे करेंगे मगर नहीं किया, तो एजेंट को पता चला, एजेंट एकदम डर गया कि भाई ये पैसा तो पे नहीं करेगा। अब एजेंट प्रिंसिपल को बोलेगा भी ना ये आदमी पैसा नहीं दे रहा है, तो प्रिंसिपल बोलेगा भाई मैं जवाबदार नहीं हूं, तूने तेरे भरोसे पे माल बेचा है, तेने तेरे रिस्क पे माल बेचा है, पैसा रिकवर होने की तूने गारंटी दी है, फिर भी ये पैसा आया नहीं है, तो भाई साहब प्रिंसिपल इसके अंदर लॉस का भागीदार नहीं बनना है। पूरी की पूरी जवाबदारी, पूरे का पूरा लॉस का रिस्क एजेंट का बनता है। क्यों? क्योंकि जब एजेंट रिकवर करने पे एक्स्ट्रा कमीशन मांगता है तो प्रिंसिपल बोलता है भाई तू एक्स्ट्रा काम करने का एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है ना, तो तेरा काम नहीं हुआ तो वो लॉस का मैं जवाबदार नहीं हूं, मेरा लॉस का जवाबदार तू बनेगा। सो इफ कस्टमर is fails to pay his dues or buyer is unable to pay, then dull creditor agent is liable for the payment. तो फिर उस पैसे को पे करने का प्रिंसिपल के लिए लायबल वो एजेंट बन जाता है। एजेंट रिस्क पे आ जाता है कभी कभी, क्योंकि एजेंट एकदम कॉन्फिडेंस में बात करता है, लेकिन मैं तो क्रेडिट पे बेचूंगा तो भी मेरे को सामने वाला पैसा देके जाएगा उतने दिन के बाद। लेकिन कोई ऐसा माथे का सिरफिरा मिल जाता है ना, भाई उसने बोला कि भाई 35 दिन के बाद पे करूंगा, लेकिन भाई फिर 30 दिन के बाद छू मंतर वो भी चला गया किधर, नो अता पता, कोई अपने को उसका जानकारी नहीं, और उसने तो माल दे दिया क्रेडिट के ऊपर। अभी एजेंट पछता रहा है, मगर एजेंट का फिर उसमें बड़ा रिस्क हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सो डल क्रेडिटर एजेंट व्हेन ही इज डूइंग दिस जॉब, उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता भी है नो डाउट, बट कुछ केसेस में इस तरह से लॉस भी उसको भुगतना पड़ता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स कुछ टाइप्स के एजेंट के लिए हमने जो डिस्कशन लिया, इसके ऊपर कहाँ ना कहाँ क्वेश्चन, खास तौर पे एक जनरल कमीशन के बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं, डल क्रेडिटर के लिए क्वेश्चंस रहते हैं खास करके। और एक आपको जनरल गाइडलाइंस दे दूं मैं, एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर कमर्शियल मैथमेटिक्स, कंप्लीटली मैं बोलता हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, एंड एनी वर्ड प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करते हो तो आपको प्रॉपरली रीड करने का, रीड करके उसको बराबर से अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको उस क्वेश्चन में से जनरेट करने की, अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, understand the given parts, understand the question because it is in the category of word problem. Read, जितना आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे उसमें से आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, और जो भी गिवन है वो आप लिख लो, उसकी टर्म्स कंडीशन को आप अंडरस्टैंड करो, टर्म्स एंड कंडीशन, अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मीन्स व्हाट, जो भी आपको उसमें अंदर से गिवन है टर्म्स कंडीशन है उसकी, वो आपको बराबर से समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, एंड देन अप्लाई द मेथड टू सॉल्व। जो भी आपको पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए आपको सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ मेथड आपको प्रॉपरली अप्लाई करनी है, बट आप वो लास्ट में करेंगे, जब तक आप बराबर से उसको समझेंगे नहीं तब तक वो आप कर नहीं पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट
वर्ड प्रॉब्लम कैटेगरी के क्वेश्चंस जो हैं तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का, गिवन लिख लेने का और फिर सॉल्यूशन उसका सिस्टमैटिकली शुरू करने का। केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशंस, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। बट इसमें जो भी है प्रैक्टिस की जरूरत है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके आधार पे हमको आगे बढ़ना है। सो लेट मी बिगिन विद द exercise questions. So let us begin with our exercise. As we discussed the theory part, what are the important terminologies that we have discussed? Commission, brokerage, who is the agent, who is broker, types of agent, etc., etc. Many things we have cleared, and now let me come to the exercise question part. Question number first, an agent charges 12% commission on the sales. स्टूडेंट जब आप पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन में जो भी डिटेल है उसको मार्किंग कर लेने का, अंडरलाइन कर लेने का, तो आपको पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली माइंड में बैठ जाता है एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर as per the requirement. So an agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sales amounts to rupees 48,000? And what does the seller get? जो seller है उसको क्या मिलेगा? So very first we will write in the solution the given, that is the total amount of sales, that is rupees 48,000, rupees 48,000. Next, agent's commission. Agent's commission कितना है? 12%, which is given. Next, agent's commission. How much commission agent will get? Okay, agent's commission will be 48,000 multiplied by 12%, that is 12 upon 100. स्टूडेंट्स ये आपको पता ही होना है, किसी का भी परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे तो that much percentage upon 100, that we have to multiply it. So 48,000 पे 12%, that is going to be rupees 5,760. 2 0 कट हो जाएगा and 480 multiplied by 12, that will give you 5,760. And finally ये तो इतना रुपीस एजेंट का कमीशन बनता है। अब सेलर क्या रिसीव करता है? ये सेलर उतना पैसा रिसीव करेगा कि जिसमें एजेंट ने अपना कमीशन क्या कर लिया है? डिडक्ट कर लिया है। तो एजेंट क्या करेगा? 48,000 में से अपना कमीशन 5,760 ले लेगा और बाकी का पैसा उस सेलर को, उस प्रिंसिपल को, मैं ये भी बोलना चाहूंगा भले यहाँ वर्ड नहीं है, उसको रिटर्न कर देगा। So seller will get rupees the total sales, that is 48,000 minus agent's commission. That if you deduct 48,000 minus 5,760 will be rupees 42,240. This much rupees seller will get. So this way this question, दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो एजेंट का कमीशन और दूसरा सेलर को कितना मिलेगा इन रिटर्न आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन ऑफ एजेंट. सो 42,240, दिस मच अमाउंट seller will receive after agent's commission. This is very easy question, simple, just for calculating commission. कैसे परसेंटेज दिया है आपने, कैसे उसका कमीशन ढूंढा है, उस पर ध्यान रखना है और रिमेनिंग पैसा लौटा देगा एजेंट अपना कमीशन लेके, बाकी का पैसा उसको
रेमिट कर देगा, भेज देगा उसके प्रिंसिपल को, सेलर को। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, salesman receives 3% commission on the sales up to rupees 50,000। देखो बराबर से कंडीशन को पढ़ने का, हमें क्या बताया हुआ है? सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू रुपीज 50,000। अप टू रुपीज 50,000 का मतलब क्या कि 50,000 तक का सेल होगा तो उसको 3% कमीशन दिया जाएगा। 50,000 तक का एक लेवल नक्की किया है। मैंने आगे थियरी में बताया आपको कि भाई जब भी ये एजेंट को अपॉइंट किया जाता है तो उनके सामने प्रिंसिपल बैठ के टर्म्स कंडीशन नक्की करते हैं और वो टर्म्स कंडीशन के आधार पे एजेंट को कमीशन मिलता है। तो 50,000 तक का सेल होना है सपोज, तो उसको 3% उस पर कमीशन मिलेगा। सपोज समझ लीजिए सेल हुआ 45,000, तो 45,000 पे उसको 3% मिल जाना है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने। सो दिस इज हियर द कंडीशन दैट 50,000 अप टू 50,000 जो सेल होता है तो उसका 3% कमीशन बनता है। आगे, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर रुपीज 50,000। ओवर रुपीज 50,000 जो उसका सेल 50,000 से ज्यादा हुआ तो उस पर 4% मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन है। तो फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज 2 lakhs। अब हमको फाइनली बता देते हैं जो उसका सेल 2 लाख का हुआ है, जो उसका सेल 2 लाख का हुआ है, तो बताइए एजेंट का टोटल इनकम कितना? टोटल इनकम बताना उसका। टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ कमीशन व्हाट ही इज गोइंग टू अर्न। उसने माल कितने का बेचा? 2 लाख। अब 2 लाख तो 50,000 से भी ऊपर चला गया ना, 50,000 से भी ऊपर चला गया। सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट द गिवन पार्ट, that given, that is 3% commission on the sales up to rupees 50,000। ये हमें जानकारी जो दी है वो हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद बोला है 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर रुपीज 50,000। देयर आर गिवन पार्ट्स एंड देन नेक्स्ट वन, टोटल सेल भी हमको प्रोवाइड किया है रुपीज 2 lakhs। तो अब आप जरा सोच लीजिए 50,000 से तो ऊपर चला ही गया ना 2 लाख, तो 3% तो पहले उसका बनता है। तो 3% कमीशन सेल्स अप टू 50,000 के हिसाब से हमें 3% पहले निकाल लेना है। दैट 3% ऑन 50,000, 50,000 पे 3%, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100। 2 जीरो कैंसल है, क्या बचेगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज गोइंग टू बी 1,500। दिस इज नंबर 1। इसको मुझे बाजू पे रखना है। ये एक उसकी इनकम हुई, एजेंट की एक इनकम हुई 3% वाली। 3% के ऊपर 3% के हिसाब से उसका 1,500 रुपया बनता है 50,000 के ऊपर, क्योंकि अप टू 50,000 था। इसके हिसाब से 3% तो पक्का है उसका। ये रहा 1,500 उसका पक्का, एक बाजू रखो। जबकि सेल 2 लाख है तो 50,000 के ऊपर चला गया ना सेल। 50,000 के ऊपर कहां तक गया? वो 2 लाख। तो 2 लाख तक का सेल के हिसाब से 50,000 से ऊपर कितना हुआ? अबव 50,000 अप टू 2 lakhs मतलब कितना हुआ? देखो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। 50,000 एक हिसाब इधर है इतना, मगर जो टोटल है ये टोटल वो तो 2 लाख है। टोटल 2 लाख है। सो कमीशन नाउ
4% is to be given on sales over rupees 50,000. तो 50,000 के ऊपर कितना हुआ? 2 लाख तक, 1.5 लाख हुआ कि नहीं? 50,000 और 2 लाख, 50,000 के ऊपर, ओके, रिमेनिंग कितना हुआ वो आप समझ लेते हैं, 1.5 लाख. सो सेल्स ओवर रुपीज 50,000 इज इक्वल्स टू 50,000 के, मैंने ओरली बता दिया 50,000 के ऊपर कितने का सेल होता है, क्योंकि 1.5 लाख, क्योंकि टोटल हुआ है 2 लाख. तो यहाँ मैंने क्लेरिफाई किया है, देखो लिख के कि सेल्स ओवर रुपीज 50,000 शुड बी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस 50,000. टोटल सेल्स है 2 लाख, 50,000 के ऊपर 50,000 में से माइनस कर दो, ऊपर का सेल्स 1.5 लाख मिल जाएगा. इस 1.5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा आपको 4% कमीशन मिलना है. 4% कमीशन 1.5 लाख के ऊपर. नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी commission at the rate 4% on the sales rupees 1,50,000 is going to be 1,50,000 multiplied by 4 upon 100. 2 0 cut, 1,500 multiplied by 4, that is going to be rupees 6,000. This is going to be your statement number second. ये उसके लिए दूसरा इनकम हो गया. जो एजेंट है, सेल्समैन है, जो भी है, ये बंदे के लिए ये इनकम दूसरी इनकम हो गई. पहली इनकम 50,000 तक का सेल के ऊपर उसको 3% का जो इनकम था वो 1,500 आया था ना, उसको नंबर 1 करके रखा है ना. अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इनकम को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम मिल जाएगा. तो दोनों कमीशन को आप ऐड करेंगे, so that will become the total commission, that you can write total income also. So total income, or you may say total commission, is equals to rupees 1,500 plus rupees 6,000 from 1 and 2. That means it will be going to be total income of rupees 7,500. Total income of rupees 7,500. स्टूडेंट समझ में आया? जो कंडीशन दिया है उसके आधार पे हमें आगे कैलकुलेशन बढ़ाना है, और जो सिस्टम से अपन जा रहे हैं समझने का स्टेटमेंट में क्या लिखा है. टोटल 2 लाख का सेल हुआ है, दिस इज टोटल सेल्स 2 लाख, और 50,000 का सेल ये रहा, इतना है 50,000. तो ये बैलेंसिंग बाकी का 1.5 लाख हुआ कि नहीं हुआ? तो 50,000 तक के ऊपर 3% मिलता है, और ऊपर जो भी ऊपर का बैलेंस रहेगा 50,000 से ऊपर जितना भी रहना है रहने दो, 4% उस पर मिल जाना है. तो इसका 4% और इसका 3%, इससे ऊपर 3%, बस दोनों को ऐड कर देंगे. इसके 50,000 के ऊपर 3% बोलेगा तो 1,500, और 1,50,000 पे 4% बोलेगा तो 6,000. ये तो ओरली भी होएगा स्टूडेंट्स. 50,000 पे 3% कैसे लेने का? 1% लेने का ना, किसी का भी 2 जीरो निकाल दे. 50,000 का 2 जीरो निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 500. 500 बनेगा 1%. 3% करने का है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर, 1,500. ये 1,500 आ गया. देख, 1,50,000, 1.5 लाख का 4% निकालने का है. वापस 1% निकालने का तो 2 जीरो निकाल, 2 जीरो निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 1,500. 1,500 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,500 मतलब 1,500. 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 जा 60, और 2 जीरो लगा दे, मतलब हो गया 6,000. 6,000 और 1,500, टोटल मार्क 7,500. ओरल काम होता है, बट ओरल कभी हो जाएगा वो भी थोड़ा अपने को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला है. इफ योर क्वेश्चन इज क्लियर, you can easily move, easily calculate. Even certain way you can have oral calculation also. Fine, हमें तो step by step बताना है. So this is what our question number 2 is done. Now moving to the next question. Question number 3.
Miss Saraswati was paid rupees 88,000 as commission. स्टूडेंट अब देखो थोड़ा उल्टा पुल्टा इंफॉर्मेशन देने के लिए उन लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को घुमाएंगे, क्वेश्चन को रिवर्स स्टाइल में पूछेंगे, सीधा सीधा खाली कमीशन निकालने के हिसाब से नहीं भी पूछेंगे, कमीशन पहले से निकाल के दे देंगे, कुछ उन लोग अपने तरह से इंफॉर्मेशन को इस तरह से मॉडिफाई करके देते हैं। देखो, मिस सरस्वती हैज was paid rupees 88,000 as commission on the sale of computers. सरस्वती एक प्रकार से कोई एजेंट है जिसको 88,000 कमीशन के थ्रू पे किया गया है, किसके सेल के लिए, तो कि कंप्यूटर्स बेच रहे हैं, कंप्यूटर का सेलिंग हो रहा है और मिस सरस्वती को 88,000 का कमीशन दिया गया है। उसने क्या बेचा है, कंप्यूटर्स बेचे हैं और कंप्यूटर बेचने पे उसको 88,000 का कमीशन मिला है एट द रेट ऑफ 12.5%। उसके साथ रेट कमीशन का क्या नक्की किया था, 12.5%। एक्चुअल कमीशन कितना मिला, 88,000। रेट ऑफ कमीशन क्या था, 12.5 और 12.5% के हिसाब से जो भी कमीशन आया है वो 88,000 आया है। इट मीन्स नेक्स्ट, if the price of each computer was rupees 32,000, price of each computer, एक कंप्यूटर का प्राइस है 32,000, एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000, then how many computers did she sell? तो बताइए 88,000 जो उसका कमीशन उसका बना है, वो 88,000 कमीशन कमाने के लिए उसने कितने कंप्यूटर्स बेचे होंगे, how many? एक कंप्यूटर 32,000। अब आप एक सीधा हिसाब जोड़ दो, थोड़ा मैं ओरल डिस्कस कर देता हूं, आपको भी थोड़ा ध्यान बैठता है कि नहीं देखना है। एक कंप्यूटर बेचती हो तो कमीशन मिलता है 12.5% का। अब 32,000 के ऊपर मतलब कि एक कंप्यूटर जो बेचा है उसने, सपोज समझ लो, तो 12.5% कमीशन कितना बनता है वो आप निकाल लो। So for what we'll first write? First we'll write the given part. Commission paid to Saraswati rupees 88,000. ये एक बात हो गई। Second बात, on sale of computer rate of commission that she is getting is 12.5%. ये भी हमको मालूम है। Then price of each computer, that is rupees 32,000, we know. And next information, number of computers sold, ये हमको जानना है, क्वेश्चन मार्क देखो, that is we have to find out. अब हम क्या करेंगे, पहले एक कंप्यूटर के ऊपर कमीशन कितना बनता है वो निकालेंगे। कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, या यू कैन से कमीशन पर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर बेचा है उसने तो कितना कमीशन बनेगा, तो कि 12.5% निकाल लो, 32,000 एक कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस है, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100, 100 दो जीरो 32,000 में से कैंसिल हो गया, एंड स्टिल यू कैन हैव 12.5 में से एक जीरो और निकाल लोगे आप। इफ यू वांट यू कैन शो इट लाइक दिस, 320 जो बचता है, और आप लोग जो 12.5 में से पॉइंट निकाल देते हो तो 10 नीचे आ जाएगा, and again 10 is going to be cancelled. Now if you multiply 32 with 125, that you are going to get rupees 4,000. ठीक है, ये आप स्टेप में दिखाने का, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, you can show it that calculation little bit. ना 4,000 रुपए का कमीशन मतलब कि एक कंप्यूटर बेचने पे सरस्वती को मिलता है। Yes, this can be your answer for commission of on one computer. Fine. 88,000 का जो टोटल कमीशन उसको मिला है वो तो उसने बहुत सारे कंप्यूटर कुछ सेल किए हैं तब जाके मिला है। तो 88,000 कमीशन में जो मिलता है उसको, तो समझो कितने कंप्यूटर उसने बेचे होंगे।
सो एक कंप्यूटर बेचने पे 4000 मिलता है, तो कितने कंप्यूटर बेचेगा कि 88,000 मिलेगा? आपको समझ में आता है? एक पे 4000 का कमीशन मिलता है ना, एक कंप्यूटर पे 4000 का कमीशन मिल रहा है, तो 88,000 का कमीशन कमाने के लिए सरस्वती ने कितने कंप्यूटर बेचे होंगे? सो आई मे हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। यहाँ देख लो, ये भी सिस्टम से आप जा सकते हो कि जो 4000 का कमीशन उसने कमाया है जाके एक कंप्यूटर बेचने पे, 4000 का कमीशन उसने कमाया है तभी जब उसने एक कंप्यूटर बेचा है, तो 88,000 का जो कमीशन उसको कमाना है, तो x कंप्यूटर बेचा होगा उसने, then that x number of computers I am going to get by making it cross multiplication। पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये हुआ क्या, तो कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4000 मल्टीप्लाई बाय x is equals to 88,000, and that is going to be x is equals to 88,000 divided by 4,000, that you are going to get as 3 0 cancel, 4 2 जा 4 2 जा, x is equals to 22, मतलब जितने कंप्यूटर बेचे हैं 22 वो आपके सामने आ गया। अब इतना कैलकुलेशन जो क्रॉस मल्टीप्लाई का आपको जो समझ में आता है, तो अभी डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे डायरेक्ट? देखो मैंने जो स्टेप बनाया इधर, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन that she received upon commission that she is receiving per computer। टोटल उसने कितना कमीशन रिसीव किया है डिवाइडेड बाय एक कंप्यूटर पे उसने कितना कमीशन रिसीव किया है, दैट विल बी गोइंग टू गिव यू 88,000 अपॉन 4,000। द सेम स्टेप यहाँ पे देखो, हमको जो मिला था 88,000 अपॉन 4,000 वही मिल गया, एंड दैट इज गोइंग टू बी 22, एंड दैट इज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये मैंने कुछ अल्टरनेटिव आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड बाय साइड में बता रहा हूं, इसको ध्यान में लीजिए। जो ये डायरेक्ट होता है तुमसे समझने से तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट मेथड से अपन जाएंगे, एक्स वगैरह अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर शी हैज सोल्ड। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान में लीजिए, कैसे किए हमने। x अज्यूम करने तो कर सकते हैं, या अपन ऐसा स्टेप बता सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो भी आपको x का वैल्यू 22 मिलना है। अदरवाइज दिस वे यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो ढूंढना है, तो टोटल कमीशन जितना उसको मिला है उसको आप डिवाइड करिए एक कंप्यूटर पे उसको कितना कमीशन मिला हो, तो एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन मिला वो मैंने अलग से निकाल लिया है, and that way we have divided and we got 22 computers। Okay friends, moving to the question number 4, let us read first question and understand what is given। Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her। टोटल सेल्स पे अनीता को 6.5% कमीशन मिलता है, ओके, प्लस बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल्स ओवर ₹20,000। ऊपर से उसको बोनस भी मिलेगा। कब मिलेगा बोनस? कितने का मिलता है? ½ इस पे जब वो 20,000 से ज्यादा सेल करेगी। तो जनरली क्या होता है ना, एजेंट को है ना ऐसे हम लालच देते हैं, लालच समझ रहे हैं ना, कि आप एक लेवल से ज्यादा करते हो तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा और दूंगा। क्यों ऐसा बोलते हैं हम, लालच क्यों दे रहे हैं? तो कि वो
उस एक्स्ट्रा कमीशन को कमाने के लिए ज्यादा सेल करने की कोशिश में रहेंगे। और प्रिंसिपल क्या समझता है कि नहीं, ज्यादा सेल करेगा तो हमारा तो बेनिफिट है। तो जितना उसको इस तरह से ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब इस तरह से लालच वाला कोई टर्म्स कंडीशन देगा, तो वो जल्दी से उसके सामने उसका परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, सेल ज्यादा करने के लिए सोचेंगे एजेंट। क्यों? ज्यादा सेल होगा तो मुझे कमीशन के साथ साथ 20,000 से ऊपर का भी मैं सेल कर दूंगी, तो मैं आधा टका बोनस भी कमा सकती हूँ। अनीता मे थिंक लाइक दैट कि भाई सेल तो करना ही है, तो एक ज्यादा हो जाएगा, 20,000 से ज्यादा होगा तो अच्छी भी बात है, आधा टका उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसने टर्म्स कंडीशन ऐसे रखे हुए हैं कि कोई भी एजेंट हो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा बेचने का प्रयत्न करेगा, और जितना ज्यादा बेचेगा उसको प्रिंसिपल के लिए तो बहुत अच्छा है, उसका सेल्स बढ़ेगा, उसका बिजनेस अच्छा होगा, साथ में एजेंट को भी अपने लिए कमीशन ज्यादा कमाने मिलेगा, उसका भी अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। So Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her, plus a bonus of 0.5% on the sales over rupees 20,000, over rupees 20,000। जैसे वहां above 50,000 जैसा था ना फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कुछ, तो वो 50,000 के अबव, वैसे यहाँ पे ओवर 20,000, 20,000 से ऊपर जो करती है सेल तो। नेक्स्ट, if her total commission amount to rupees 3,400, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन बोलेगा तो क्या बोलने का यहाँ पे, टोटल बोला ना, तो इसके अंदर वो जो 6.5% वाला जो कमीशन है प्लस जो आधा टका बोनस है वो भी इंक्लूडेड होना है। समझ में आ रहा है? टोटल का मतलब इसमें दोनों उसके कमीशन, मतलब कि एक तो है 6.5% कमीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो आधा टका का जो बोनस है एडिशनली वो भी इसमें आना है। तो टोटल उसका कितना अर्निंग हो रहा है? 3,400। देन फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, तो बताइए उसने कितने रुपए का सेल किया होगा, कितने अमाउंट का सेल किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स बोला है भाई, टोटल सेल्स ध्यान रखना, आधा टका तो बाद की बात है, टोटल सेल पे तो 6.5% उसको मिल जाना है। नेक्स्ट, बोनस दैट इज 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। अब देखो टोटल सेल्स हमको मालूम तो है नहीं। हाँ, नेक्स्ट आपको दिया है टोटल कमीशन रुपीज 3,400, देन द टोटल सेल विल बी हाउ मच। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं कि टोटल सेल्स समझ लो x है, टोटल सेल्स समझ लो x है। तो आप जरा देखो, तो मैं मेरा चित्र बनाता हूं, ये डायग्राम से आपको पता चलना है, ये हमारा समझ लो टोटल सेल्स है x रुपीज, बराबर है। अब ये है 20,000, 20,000 का लेवल है, इतना है ना, जो ये है 20,000। अब ये 20,000 से ऊपर बाकी का जो है बैलेंस वो कितना होगा? क्योंकि ये मैं मान के चलूंगा x माइनस 20,000, टोटल x है ना, यस और नो, टोटल x है 20,000, ये रहा, तो ये बाकी का कितना होगा? तो 20,000 उसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ जो है x माइनस 20,000। तो 20,000 और 20,000 से ऊपर x माइनस 20,000, ये आपके सामने मैंने डिफरेंस डायग्राम से बताया, समझ में आया है सबको? तो टोटल सेल इज x रुपीज, ये देखो चित्र रेडी है भाई, बराबर मैंने इसको सजावट किया, देख लो, टोटल सेल्स x 20,000, 20,000 से ऊपर x माइनस 20,000, क्लियर भाई साहब? तो पहले तो हम टोटल सेल्स पे 6.5% अनीता को दे देंगे, अनीता को कमीशन 6.5% टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स कितना है? x रुपीज, टोटल सेल्स कितना है? x रुपीज, x रुपीज पे 6.5% मतलब 6.5 अपॉन 100, 6.5 अपॉन 100, एंड दिस वे इट इज गोइंग टू बी, ये आपका बनेगा 6.5x, यहाँ से एक जीरो हटा दीजिए,
बिकॉज पॉइंट लिया मैंने निकाला नहीं है, 6.5 ही रखा है। 6.5 में से पॉइंट निकाल देते ना तो नीचे 1000 आ जाता। ठीक है, या तो आप उसको लिख सकते हैं 65x अपॉन 1000। मैंने पॉइंट निकाल दिया 6.5, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना 0.5, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, नीचे 100 था, क्या हो जाएगा 1000। दिस इज व्हाट कमीशन 6.5% ऑन टोटल सेल्स। ये एक टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब जबकि 20,000 से ऊपर जो इतना सेल हुआ है, 20,000 से ऊपर मतलब कितना सेल हुआ, x माइनस 20,000, उस पे हमें आधा टका बोनस मिलेगा, आधा टका बोनस मिलेगा। ये x जो है टोटल सेल्स जो था उस पे हमें 6.5% मिल चुका है, 6.5% मिल चुका है। एक स्टेप और इन्होंने हमने बताया हुआ है। सो 65x अपॉन 1000 का मतलब आप समझेंगे, पॉइंट लगाना है तो नीचे से 3 जीरो आप ऊपर ले लोगे ना, तो क्या हो जाएगा 0.065। समझ में आ रहा है, 0.065। सो ये जो नीचे 100 में 2 जीरो है वो आप ऊपर ले लोगे ना डेसिमल, तो इट विल बी 0.065x। ठीक है, अब 20,000 के ऊपर जितने का सेल हुआ है, 20,000 के ऊपर जितने का सेल हुआ है, दैट इज x माइनस 20,000, हमने डायग्राम में भी दिखाया है, उस पे हमें आधा टका बोनस लेना है। तो बोनस एट द रेट 0.5% ऑन सेल्स ओवर ₹20,000। तो x माइनस 20,000 जो 20,000 से ऊपर का जो सेल हुआ है उस पे आधा टका कैसे लेने का, मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब ये 2 जीरो ये 20,000 में के 2 जीरो के साथ कैंसिल मत करना, ये पूरा x माइनस 20,000 एक पूरा टर्म है, डू नॉट कैंसिल दैट वे। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 20,000 अपॉन 2 इंटू 100 दैट इज 200, इस तरह से लिखा जाएगा। सो दिस इज बोनस, ये आपका बोनस आ चुका है। नाउ दिस बोनस स्टूडेंट्स, दिस बोनस and this 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, ये दोनों मिला के, ये आप जब टोटल करोगे ये दोनों को मिला दोगे, दैट इज गोइंग टू बी द टोटल कमीशन, और ये में से टोटल इनकम ऑफ अनीता। तो अनीता को इनकम दो प्रकार से हुई है, एक 6.5% टोटल सेल्स पे, तो कि ये रहा, और दूसरा आधा टका बोनस 20,000 के ऊपर के सेल पे। तो 20,000 के ऊपर के कितने का सेल हुआ रहेगा, तो x माइनस 20,000, क्योंकि टोटल सेल हमने x अज्यूम किया है, टोटल सेल हमको मालूम नहीं इसलिए x अज्यूम किया, टोटल सेल्स x अज्यूम किया है। 20,000 से ऊपर का कितने का सेल हुआ रहेगा, x माइनस 20,000, तो उस पे मैंने आधा टका लिया है, देख लो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप समझ जाएंगे, ये आधा टका बोनस और वो 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल दोनों को ऐड करोगे, that is going to be your total commission, which is provided total commission in the question 3,400। तो ये आपका एक स्टेप बन गया, this plus this is equals to this, yes or no। so next step में मैं टोटल कमीशन जो गिवन है उसके हिसाब से दोनों को ऐड करके दूंगा, since the total commission is ₹3,400, this is given, and therefore the next step I will make 0.065x plus x minus 20,000 upon 200 is equals to 3,400। ये आपको भी सॉल्व करना है। So now we have to solve this further to get the answer of x। स्टूडेंट अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। So what I can do,
0.065x तो ऐसे ही रखता हूँ, प्लस ये जो टर्म है उसके न्यूमरेटर में x माइनस 20,000 है, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करना मतलब x के अपॉन में 200 माइनस 20,000 के अपॉन में भी 200, राइट हैंड साइड सेम 3,400, राइट हैंड साइड 3,400 एज इट इज। अब यहाँ 2 जीरो कट हो जाएगा, एज वेल एज जो 200 बचा है उसको 2 से आप कैंसिल करेंगे, 100 बचेगा, और 0.065x प्लस, अब यहाँ पे x अपॉन 200 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 3,400, बाकी का सब एज इट इज। अब सुन, ये मैंने पर्पसफुली इस तरह से लिखा है, देखो तो कि अपॉन में 100 है, ऊपर ये 1x है, और 1 अपॉन 2 आधा होने के कारण ये 0.5 हो जाएगा, तो 0.065x प्लस ये 1 अपॉन 2 के हिसाब से मैं लिखता हूँ 0.5x अपॉन का 100 एज इट इज, और यहाँ पे 3,400 राइट हैंड साइड है, ये 100 को वहां ट्रांसफर कर देंगे, प्लस 100 हो जाएगा, therefore 0.065x प्लस, अब देखो अपॉन में 100 है, उसका डेसिमल ऊपर लेने के लिए अच्छा हो जाएगा, इसलिए मेरे को क्या मिलेगा, ये 0.005x इज इक्वल टू 3,500। अब आप जरा इसको ऐड कर लो लेफ्ट हैंड साइड में, देखो 0.065x और प्लस है 0.005x, तो क्या बनता है, देखो मैं रफ में करता हूँ 0.065 और यह है 0.005, इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.070, that means 0.07x is equals to 3,500, and finally this x will be 3,500 divided by 0.07, then that x will be 3,500, यहाँ पे आप पॉइंट निकालोगे ना तो उसके डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसका 100 हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 7, 0.07 में मैंने पॉइंट के बाद 07 2 डिजिट्स है निकाल दिए हैं, तो ऊपर 100 गया, 7 से ये मल्टीपल में है, 7 5 35, 2 0 एज इट इज, it is x is equals to 500 multiplied by 100 which is 50,000, which is 50,000। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो यहाँ पे x जो हमने अज्यूम किया था टोटल सेल्स, ये हो गया 50,000, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ₹50,000। अब स्टूडेंट इसको हम वेरीफाई करते हैं, 50,000 का आंसर सही है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट आपको ये वेरीफाई करना है दैट दिस टोटल सेल्स इज 50,000, ये आपको टू वेरीफाई करना हो, then how you are going to verify, this can be also done with the help of one step, that आपने टोटल सेल्स ढूंढ लिया 50,000, और 50,000 कंडीशन क्या थी, तो के टोटल सेल्स पे ऑन टोटल सेल्स कमीशन एट द रेट 6.5%, बराबर है, एट दैट इज 50,000 multiplied by 6.5 upon 100, that is going to be 50,000 multiplied by 65 upon 1000, 30 cancel हो जाएगा, so 50 into 65, that is going to be 3,250, और अलग से उसको बोनस भी मिल रहा है, तो
bonus at the rate half percent, bonus at the rate half percent, that is half percent on 20,000 से ऊपर जितने का सेल हुआ है। तो 20,000 से ऊपर का तो 30,000 का हुआ है, 20,000 के ऊपर का तो 30,000 का हो गया, टोटल 50,000 का है। तो 30,000 के ऊपर उसको मिलेगा 30,000 के ऊपर आधा टका, ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 से 300 को कैंसिल करो 150 आएगा। तो दिस इज 150 रुपीज का बोनस। तो टोटल कितना हो गया, इसको और इसको आप ऐड करिए, 3,250 प्लस 150, इट इज गोइंग टू बी 3,450 और वही तो आपको क्वेश्चन में बोला था कि टोटल उसका कमीशन जो बनता है वर्थ रुपीज 3,400। दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। मतलब ये मैंने वेरीफाई किया, दैट इज जस्ट फॉर द पर्पस दैट कि हमने जो किया है कैलकुलेशन, हमने जो कैलकुलेशन करके 50,000 का आंसर जो हमने लाया है वो कंफर्मेशन लेने के लिए ये हम कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहां तक जो क्वेश्चन किए उसको दोबारा रिपीट करिएगा, थियरी प्रॉपरली एक बार देख लीजिए सही से, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।